Today we're doing quadratics. Say we'll do completing square method, we'll do middle term breaking, and we will do quadratic formula. Yes. Okay. So here you have your quadratic formula, right? अब यहाँ पे what is A, B and C? When you have a quadratic equation, it looks something like A x square plus minus bx plus c square. Okay. So these are the values that will be placed here. A यहाँ आ जाएगा, B और C अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, right? So you have ax square plus minus bx plus c square. So अगर हम okay. One second. Let's go on to quadratics. So let's look at completing the square method. Or yes. So जब हम completing the square method करेंगे ना, we want to bring it into this form, right? या तो we get it into this form or we get it into x minus a whole squared, right? So यहाँ पे if we see, we can get this into these fractions. अच्छा, do you see that जब भी हमारे पास this value is converted into the open form, this and this have a certain relationship. We have 6, तो ये अगर हम 3 squared लिखें, लिख सकते हैं? Yes. Right? So अगर हमारे पास x square minus 5x हो, plus 5x हो, sorry, x plus 5 whole squared हो, so this could be written as x square plus 10x plus 5 squared. Yes, ऐसे ही, right? अगर मैं x plus 4 whole squared लिखूंगा तो उसको हम किस तरह लिख सकेंगे? x square plus 8x plus 4 square. Yes, exactly. Right? So अब हमारे क्या ट्रेंड क्या आ रहा है? The x coefficient is the double of the value in the bracket.
is the double of the value which is squared, Yes. right? And does not have any variable. सही है? So यहाँ पे how did they get this? What they did was we have x square plus 6x plus 1. Yes? Yes. So can we, in order to complete the square, make it so that we have x square plus 6x plus 3 square plus 1. And since we put this 3 square here, we also minus 3 square. Can we do that? So can you explain this again? What you just did? हमने ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दी But from where? अपनी तरफ से. अगर ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे जीरो हो जाएंगे, राइट? Yes. So if we put them both together, it doesn't matter. Yes? Yeah. ठीक है. So अब looking at this, can we say that this is x plus 3 whole squared? Yeah. So we had this value. Is this Yes. x plus 3 whole squared? Yes. So we have x plus 3 whole squared. अब यहाँ बाहर जो हमारे पास बचा, we have 1 minus 9. Yes. Yes. Which gives you how much? 8. Minus 8. Yeah. Yes, sir. Okay. So अगर हम questions पे आए, if we have this, तो इसमें हम क्या दो चीजें ऐड करेंगे? Will we? Sir, 2 बस. सही है? ठीक है? Yes. राइट? तो ये क्या हो जाएगा? Sir, हम जरा इस 14 को रिमूव करते हैं. Plus 3 squared plus 14. Yes. Yes. अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास x square, सॉरी x plus 3 whole squared. Okay. और बाहर इनको हम इक्वेट कर लेते हैं. This becomes 9. So how much is this? 5. 5. तो अगर हमारे पास इस फॉर्म के अंदर हमने लिखना है, so we have x plus 3 whole squared plus 5. Okay. Okay. अगर हम d की बात करें तो d का क्या हो जाएगा? सर, क्या बोलो? सर वो मैंने नमाज पढ़नी है तो मैं 2 मिनट्स में आता हूँ. ओके. अच्छा, try d and e. Okay.
So here you will do the same thing. जो अब तक कर रहे थे, you'll do the exact same thing. You will have 2 squared and minus 2 squared, and what you'll have is x minus 2 whole squared, right? Yes. Okay. So for D, I got x plus 3 whole square minus 4. Okay. And for For I got x plus 2 whole square plus 16. सर मैं x plus नमाज 2 whole square. Okay. 16. Mm, sorry, it would be x minus 2. Sorry, x minus 2 whole squared. Yeah, x minus 2 whole squared. और आपके पास you would have 12 minus 2 square, which is how much? 8. सही है? Yeah. Okay. Why? Because formula के अंदर क्या होगा? x. Okay. Yes. सही है? So what's left outside is minus 12 minus 2 squared and plus 12. Okay. Eight. What about k? In k, what you'll have is minus plus 6.5 Yeah. squared minus 6.5 squared. सर हम डेसिमल में लेंगे या फ्रैक्शंस में भी लेंगे Decimal में भी ले सकते हो, fraction में भी ले सकते हो. Whatever suits you. You can have, this would become 13 over 2 whole squared, right? So this would actually be 69 over 4. Okay. ओके सर तो उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन I would say कि decimals are easier.
Sir, I got x minus 6.5 whole square minus 41.25. 1 second यार. Hmm. For k, right? Okay. Now, अच्छा, now what they're asking is solve करना. So first thing you will do is x plus 3 whole square कर दिया आपने इसको, right? और यहाँ बाहर क्या बचेगा? Is equal to -5. Sorry. Minus जो 4. भी. सर पॉजिटिव 5 होगा ना. हाँ, is equal to 5 4 होगा ना इसमें. कर लो इसको, पहले सॉल्व तो करो. This should be x plus 3 whole square और -9 -5 हो जाएगा, right? Which gives you -14. So this would be equal to 14, right? ठीक है. तो सर हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, राइट? Yes. So x plus 3 is equal to under root 14, जो कि कितना हो जाएगा? सर 3.74. सही है. How much? 3.74. 3.74. Now this is value is plus minus. ठीक है. So you can have x is equal to -6.74 और x is equal to 3.74. क्यों? क्योंकि 3.74 एक तरफ आपके पास 3 minus 3.74 होगा, सॉरी -3 minus 3.74 होगा, और एक तरफ होगा -3 plus 3.74. So on one hand you will have 0.74 और -6.74. Yes. ठीक है सर. क्यों? ये अंडर रूट वाली बात समझ में आई आपको, प्लस माइनस वाली, यस सर. राइट? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जब यूज करते हैं यू गेट वैल्यूज इन प्लस एंड माइनस, राइट? तो ये वही चीज है. फाइंड द वैल्यूज फॉर सी So, ये minus 3. एंड एफ. सॉरी, Where did you get minus 3 from? -3 यहाँ पे हमारे पास x plus 3 था, राइट? Yes. स्क्वायर इज इक्वल टू 14, राइट? Yes, sir. ये स्क्वायर हमने यहाँ डाला तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, Yes. राइट? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज देती है, Yeah. right? So x plus 3 is equal to -3.74, right? Yes. और प्लस 3.74. अब ये 3 जो आप कह रहे हैं वो यहाँ से गया, Okay. okay? So can you do C and F and give me both values? ओके सर.
सर सी में x की एक वैल्यू 3.41 है और 1.41। यस, सर सी में यस सर सी में दोबारा बताओ। 3.41 है और 3.41 और 1.41। 1.41 नहीं है, दोबारा चेक करो। So I got 3.42 after rounding it off and 0.58. अच्छा, the values are 3.41 and 0.59. So यासिर is closer. एक दफा चेक कर लो क्या गलती की है, and then try F. F का क्या बना? सर अभी तक नहीं निकाला। What are the values? F की यही वैल्यूज है, मतलब प्लस माइनस यहाँ तक ये है। जी सर। यस सर। Right? अब इसके बाद क्या वैल्यूज आ रही है? Plus minus 5.916. इसको 2 डेसिमल प्लेस बताओ। 5.916 तो नहीं है, 5.916 नहीं आ रही। इसकी क्या वैल्यू आ रही है? सर इसकी 5.92 आ रही है ना, अंडर रूट लेने के बाद। 5.916, so this is 5.91 माइनस प्लस माइनस, तो इससे आप 6 ऐड करोगे, सॉरी हाँ 6 ऐड करोगे इसमें, प्लस वाले में भी और माइनस वाले में भी, तो क्या बन जाएंगी वैल्यूज?
प्लस वाली हो जाएगी 11.2 11.92 और माइनस वाली क्या हो जाएगी 0.08. 0.08. यस, ठीक हो गया. So you can do the rest of these अपने हिसाब से. Let's move on to quadratic formula. Quadratic formula के अंदर we'll be using these, right? Minus b plus minus b squared minus 4ac over 2a. सही है. So looking at the examples, फर्स्ट वन देख रहे हो. फर्स्ट वन के अंदर हमने क्या किया है, खाली ये वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दी है. जहां एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है वहां पे 1 आ जाएगा, राइट. बाहर वाली वैल्यू के बाद माइनस लगा हुआ है. ओके, अच्छा. हियर वी विल टेक द वैल्यू विद द साइन, ठीक है. सो अगर हम यहाँ पे a के अंदर और k की वैल्यूज निकालें तो a के अंदर हमारे पास क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो क्या वैल्यूज हो जाएंगी, माइनस बी के अंदर क्या आएगा 7, बी स्क्वायर में क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर, 4ac की जगह क्या आएगा 1 और 12 और 2a की जगह 1 आ जाएगा. सही है. सो इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है. -3 and -4. एग्जैक्टली, -3 कॉमा -4. अब हम देखते हैं के को. के के अंदर हमारे पास वैल्यू के अंदर बी की जो वैल्यू है दैट इज नेगेटिव, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है एंड विल गिव दैट -12 देयर, -12 हियर. -12 का स्क्वायर जो होगा वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका माइनस माइनस है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस विल बिकम प्लस, बाहर हो जाएगा. सो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 4 ब्रैकेट 1 और 35. नहीं सॉरी, we're doing which one, we're doing n मेरे हिसाब से. So 35 over 2 because 2 और 1 हो जाएगा. So 144 स्क्वायर नहीं होगा. 144 नहीं ना, 12 का स्क्वायर मैंने डायरेक्टली ले लिया. -12 था, -12 का स्क्वायर जो है वो 144 हो जाएगा. सर तो अब इसको सॉल्व करें. बताओ दो वैल्यूज जो आएंगी बताओ. ओके, 7 and 5. 7 and Yes. 5. 5,7. ठीक है. इसी तरीके से के करके बताओ. अच्छा, when if this comes in पेपर 4 जो आपका नॉन कैलकुलेटर वाला है उसके अंदर तो आपको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन इफ दिस कम्स इन योर पेपर जिसके अंदर यू हैव योर कैलकुलेटर, पेपर 2 आई गेस, राइट, तो उसके अंदर यू कैन डायरेक्टली इनपुट द वैल्यूज इनटू योर कैलकुलेटर एंड फाइंड द आंसर. वो आपको एक वैल्यू x की दे देगा, एक वैल्यू y की दे देगा, और एक वैल्यू x की दे देगा और दूसरी वैल्यू x की दे देगा. सर. डू यू नो हाउ टू डू दैट? ये सर सिर्फ वो मोड सेटअप पे करके. मोड सेटअप में जाके आप कर सकते हैं उसको इजीली. यस. सर आपने उल्टा बोल दिया था कि वो पेपर 4 में अलाउड होता है, पेपर 2 में नहीं होता. या वही ऐसे ही. जब आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो आप उसको मोड सेटअप में जाके क्वाड्रेटिक के थ्रू वैल्यूज इनपुट करके निकाल सकते हैं. यहाँ से आपको पता है ये बात? जी सर. यस, सही. सर उसमें लिखा हुआ था कि कन्वर्जन वाला कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा. इससे की नहीं, वो इतना इशू नहीं होता उसमें, आप लेके जा सकते हैं. आपका कौन सा EX वाला है ना, क्या कहते हैं उसको, FX क्या नाम, 991 ES 991, राइट, वो आप यूज कर सकते हैं. एक और आता है उसका
ऊपर का वर्जन होता है जो ब्लैक वाला होता है, वो आप दोनों यूज कर सकते हैं। सर लेकिन उसके अंदर आपको जो इश्यू आएगा वो ये आएगा कि इफ यू डोंट राइट द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक का, आपने ये नहीं लिखा -b प्लस -4ac अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये आपने नहीं लिखा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इफ यू राइट दिस एंड देन यू राइट द वैल्यूज, जो कि एक प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद यू राइट प्लस अंडर रूट, लेट्स से अगर यहाँ पे कुछ आया अंडर रूट 14 कर लेते हैं, इसकी क्या वैल्यूज आ रही थी हमारे पास, दिस वुड हैव बिकम -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर्ड वुड बी 49 और प्लस -4 इंटू 12 हो जाएगा -48, राइट। तो ये आपके पास आ जाती 1/2, राइट। तो आपके पास जब आपने ये लिख दिया एंड यू राइट -7 प्लस 1/2 और आप लिख दें -7 -1 ओवर 2, तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ओके, और फिर एक नंबर जो होता है आपका इसका होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, ये हो जाता है तो फिर विल मूव ऑन टू ब्रेकिंग मिडिल टर्म। सर हो गया, के का आ गया आंसर। क्या आंसर आ रहे हैं के? सर 11 और -9। यस, गुड, ठीक है। सो दीज आर मोर ऑफ द सेम। So now we'll do breaking middle term. अब अगर हमारे पास 3 है और 8 है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -24। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? Twenty-four can come by 1 and 24. It can come by 2 and 12. Right? It can come by 3 and 8. सही है। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं, देयर इज मोर, लेकिन इतने में हमारा सॉल्व हो जाएगा, मैं और करना नहीं चाह रहा। इनमें से कौन सी वैल्यूज हैं जिनको प्लस या माइनस करके हमारे पास 14 बन सकता है? तो क्या मतलब, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस और माइनस, कैन दैट गिव यू 24? यस। कैसे? अगर हम 1 + 24 करते हैं 25 हो जाएगा, 1 - 24 करेंगे 23 हो जाएगा। तो 24 तो इससे हमें तो नहीं मिल सकता, 14 नहीं मिल सकता। 2 प्लस और -12, कैन दैट गिव यू 14? ओनली प्लस कैन गिव यू, राइट। तो अगर हम इसको ब्रेक कर दें, हम कर दें 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8, कर सकते हैं हम, राइट? इट्स द सेम इक्वेशन, अभी भी कोई चेंज तो नहीं आया, ठीक है। हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं और इसको इंडिविजुअली देखते हैं अभी, ठीक है। इसके अंदर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से? फोर 4 कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, और कुछ कॉमन ले सकते हैं? सर 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा? यहाँ x बच गया और यहाँ क्या बचेगा? 4। सो 3x ब्रैकेट x + 4, यस यस सर। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? सर इसमें से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन ले सकते हैं, +2 ब्रैकेट x + 4, यस
यस सर। समझ आ रही? ओके यस सर। अब हम इन दोनों के अंदर से x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। यस सर। तो x प्लस 4 हमने कॉमन लिया, पीछे बचा 3x प्लस 2। ओके, ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई ब्रेकिंग मिडिल टर्म। या से समझ में? या यस सर, लेकिन ये मुझे समझ नहीं है कि हाउ डू यू गेट लाइक -2 और +2 सॉरी। ये प्लस 2x जो यहाँ लिया था, ये 2x प्लस 12 जो किया था। जी। और दोबारा करते हैं, पार्ट सी के अंदर हमारे पास 6 है और 2 है, इनके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 12। 12। इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, यस। राइट। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम 12 बना सकते हैं? एक तो 1 एंड 12 होगा, जी। एक हो गया 2 एंड 11 6, और 6 यस सर। 3 एंड 4। सही, फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब 3 एंड 4 है, 2 एंड 6 है, 1 एंड 12 है, इनमें से कौन सी चीज है जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ सकता है? 3 and 4। 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे, और हमें प्लस 1 चाहिए, सो प्लस 4x माइनस 3x कर सकते हैं। यस। सो लेट्स पुट दैट हियर। प्लस 4x हो गया, माइनस 3x हो गया, यहाँ पे हमने 6x स्क्वायर रखा, यहाँ हमने माइनस 2 रखा। यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं हम इन दोनों में, x। और उसके अलावा क्या कॉमन ले सकते हैं 6 और 4 में से? 2। 2 कॉमन ले सकते हैं, पीछे क्या बचेगा? 3x और 2। यस। यस। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? माइनस। माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो -1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, एंड यू हैव 3x प्लस 2। ठीक है, यस। अब हम इन दोनों में से 3x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। 3x प्लस 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा? 2x माइनस 1। ओके। कैन यू सॉल्व यस वी कैन। f and I? This is the completing square method, right? दिस इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। Okay. कंप्लीटिंग स्क्वायर वो था जिसके अंदर हम लोग 2 स्क्वायर्स ऐड कर रहे थे, जो हमने सबसे पहले किया था। ठीक है, दिस क्लास हैज बीन रिकॉर्डेड, यू कैन रिव्यू दिस एनी टाइम यू वांट। ठीक है, आज अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। Okay. सर अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग वालों को क्वाड्रेटिक से वो सॉल्व करें तो आंसर तो फिर भी सेम नहीं आएगा।
सर मेरा आई पार्ट हो गया सो ये क्या आ रही है वैल्यूज? सर 2x plus 3 into x minus 2 1 second. 2x plus 3 into x minus 2 एग्जैक्टली. f किया पार्ट f. सर कर रहा हूँ ओके. यासिर आपकी वैल्यूज आ रही? सर मैं कर रहा हूँ अभी भी. ओके. So for f, I got x is equal to 2.25 and 0.25. इको वो मुझे वो वैल्यूज नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे उसके फैक्टर्स चाहिए. Factors I got 100 4x minus 9 and 4x minus 1 4x minus 1 4x minus 9. minus 9 नहीं होगा, प्लस 9 होगा. Oh yeah, plus 9. आई हो गया. नहीं. ओके. सर एफ पार्ट हो गया क्या आ रही है वैल्यू? सर 4x plus 9 into 4x minus 1 सही है. ट्राई डूइंग ओ. ओके सर
सर ओ की वैल्यूज 2x + 3 और 6x - 5 है. 6x - 5 और 2x + 3 सही है. ठीक है. सो यहाँ तक हमें बातें समझ में आ गई हैं, राइट? So shouldn't be +5? No, it will be -5. ठीक है. सो यहाँ तक हमें बातें जो है समझ में आ गई हैं. एनी क्वेश्चंस हियर? नो सर. ओके. अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके जितने क्वेश्चंस होंगे आप इन 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यू कैन यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यू कैन यूज व्हाट एल्स, ब्रेकिंग द मिडिल टर्म. ओके. सो O because I'm getting +5, not -5. चेक कराओ. अब हमारे पास देख लेते हैं इसको. ओ को ओ में हमारे पास है 12 and 15, राइट? सो 12 and 15 का मतलब क्या हुआ? 180. 180, राइट? अब 180 अगर है हमारे पास तो 180 को हम फैक्टराइज करते हैं. 180 को फैक्टराइज किया सो वी गेट 18 and 10 यूज करते हैं. ओके. Yes, sir. 18 and 10 हम यूज कर रहे हैं तो 12x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10x माइनस 15. यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ 6x कॉमन ले लेते हैं. पीछे बचेगा 2x प्लस how much? 3. 2x प्लस 3. यहाँ पे हम -5 कॉमन लेंगे. पीछे बचेगा 2x प्लस 3. ठीक है. 6x - 5, 2x प्लस 3. ठीक है. कैसे समझ में आया? Sir. चल मैंने असल में 10 - 18 कर लिया. +10 - 18. हाँ, तो वो आपने यहाँ इशू कर दी ना. जी. आपको वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ज्यादा बड़ा वाला पॉजिटिव होगा. ठीक है. यहाँ एंड करते हैं. यहाँ नमाज का भी टाइम हो गया. कोई और क्वेश्चन का? No, sir. ओके. ठीक है. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़.